یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی یاسا کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے یورپین ممالک کے لیے فضائی آپریشن کے اجازت نامے کو 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جہاں PIA کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، وہیں ان سینکڑوں پائلٹس کے روزگار بھی داؤ پر لگتے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان سے پائلٹس لائسنس حاصل کر رکھے ہیں اور PIA کے علاوہ دوسری ملکی اور بین الاقوامی ایئر لائنز کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سول ایویشن اور ریاست پاکستان کی ساکھ بھی شدید متاثر بلکہ مشکوک ہو گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس تمام صورتحال کا آغاز 2012 میں ہوا جب حکومت پاکستان نے ٹیسٹنگ کا نیا نظام متعارف کروایا، جس میں 2 امتحانی پرچوں کی جگہ 8 پرچے متعارف کروائے گئے اور جس کے نتیجے میں پائلٹس میں مختلف نوعیت کے ذرائع کے استعمال کے ساتھ پرچے پاس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو موجودہ سکینڈل کی بنیاد ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایک سابق اہلکار کے مطابق یہ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کا اپنے ہی ادارے یعنی سول ایویشن پر براہ راست اور PIA پر بالواسطہ خودکش حملہ ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے نہ صرف اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ پوری صنعت اور ریاست کی ساکھ کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ بات پہلے دن سے مختلف طریقوں سے کہی جا رہی ہے اور اس کا مرکز وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کا پارلیمنٹ میں دیا گیا بیان ہے، جس سے انہوں نے اگلی ہی پریس کانفرنس میں بیک ٹریک کیا اور جعلی لائسنس سے شروع ہونے والا معاملہ مشکوک بن گیا۔ ان معاملات میں شامل رہنے والے 1 سے زیادہ اہلکاروں نے شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس ساری صورتحال کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا اور انہوں نے وزیر ہوابازی کو کہا کہ اس معاملے پر کھل کر بات کی جائے اور پائلٹس کے معاملے پر وزیر اعظم کا موقف کچھ زیادہ ہمدردانہ نہیں ہے، پائلٹس کی تنظیم پالپا کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ تو کیا فضائی حادثہ میں تباہ ہونے والے طیارے کی رپورٹ کے ساتھ اس معاملے کو جوڑنا کیونکہ موضوع تھا اور بظاہر خودکش حملہ لگنے والی تقریر کہیں سرجیکل سٹرائک تو نہیں تھی؟ اس بارے میں PIA کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ایئر لائن کی انتظامیہ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ سارا عمل کچھ ٹھیک نہیں لگتا، جبکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے اس صورتحال پر حکومت کی کارکردگی پر طنز کرتے ہوئے 2 ٹویٹس کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی حکومت نے PIA کا بحران حل کر دیا، ایک طیارہ حادثے کو سلجھاتے پوری ایئر لائن بند، PIA کے ٹکڑے کر کے اسے بیچے جانے اور باقی ماندہ ایئر لائن اور ایئر فورس کے مزید ریٹائرڈ افسران کو بھرتی کیے جانے کی خبروں کو PIA کے ترجمان مسترد کرتے ہیں۔ تاہم اس بات کا مزید جواب ہمیں یورپین ایجنسی کے خط سے ملتا ہے اور اس خط کے سیاق و سباق میں اس کے بارے میں اشارے موجود ہیں، جس کے لیے ہمیں اس خط کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹر کائی نے اپنے خط میں لکھا کہ PIA کی 3rd کنٹری آتھورائزیشن غیر یورپی ممالک کے لیے پروازوں کا اجازت نامہ 17 مئی 2016 کو جاری کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یاسا کے اجازت نامے کی شرائط کے تحت یاسا PIA کے معاملات کی گاہے بگاہے نگرانی کرتی رہتی ہے اور یہ اس کی نگرانی کے عمل کا حصہ ہے جس کے تحت ایئر لائن بلا روک ٹوک یورپی ممالک کے لیے پروازیں چلا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یاسا اور PIA کے درمیان 2 مشاورتی اجلاس جرمنی کے شہر کولون میں واقع یاسا کے صدر دفتر میں 13 جون 2019 اور 13 ستمبر 2019 کو ہوئے تھے۔ ان دونوں اجلاسوں کے نتیجے میں ملنے والی معلومات یا آڈٹ کے تجزیے کے نتیجے میں یاسا نے 6 ایسے نکات اٹھائے جو اس کے معیار کے مطابق لیول 2 یعنی دوسرے درجے کے بنتے ہیں۔ یاسا کے دوسرے درجے کے نکات کا مطلب ہے ایسی باتیں جو عدم تعمیل کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی ایسے افعال یا غلطیاں جو ایئر لائن کی جانب سے یاسا یا شکاگو کنونشن کے عدم تعمیل کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں PIA نے اپنی جانب سے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا منصوبہ پیش کیا جسے یاسا نے منظور کیا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے پیش کیے گئے شواہد کی بنیاد پر یاسا نے 5 نکات پر مطمئن ہو کر معاملہ ختم کر دیا، جبکہ ایک معاملے پر جو سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے تھا PIA یاسا کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی، حالانکہ اس کی تکمیل کے لیے PIA کو کافی مہلت دی گئی تھی۔
जिसकी वजह से यासा ने इस मामले की दर्जा बंदी लेवल 2 से लेवल 1 कर दी। लेवल 1 का मतलब है यासा के कवानीन की ऐसी खिलाफ वर्जी जिसके नतीजे में तैयारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार ज़रूरियात पर समझौता हो सकता हो। इस लेवल के निकात या नताइज को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता है। यासा के मुताबिक एयरलाइन हिफाजती इक़दामात के निज़ाम के तमाम अनासर को मुकम्मल तौर पर नाफज करने का मुजाहरा नहीं कर सका, जिसकी तवक्को उससे शिकागो कन्वेंशन के ज़मीमा 6 के हिस्सा नंबर 1 और 19 के तहत उससे की जाती है। एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसके तहत एयरलाइंस अपने इंतज़ाम मामलात और एहतसाब के हवाले से पॉलिसियों और तरीक़ाकार को मरबूत किया जाता है, जिसका मकसद तैयारों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है, जो कि नतीजतन मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ पर मुंतज होता है। इसके बाद खत में वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी के बयानात का तज़किरा है, मगर उस तज़किरे के बाद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस के हवाले से वो तबसरे हैं जो बहुत ही तबाहकुन है। 2 मकामात पर यासा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खुलकर रियासत पाकिस्तान यानी खुसूसी तौर पर सिविल एविएशन के किरदार और उसके निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया है। खत में लिखा गया है कि यासा को इन मालूमात यानी गुलाम सरवर खान की तकरीर की बुनियाद पर तशवीश है कि पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस और ये पाकिस्तान जो कि ऑपरेटर PIA को चलाने वाली रियासत है, मौजूदा सूरत हाल में इस काबिल नहीं है कि वो ऑपरेटर्स, पायलट्स और तैयारों की तस्दीक और निगरानी का काम काबिल इत्तलाक बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में कर सके। उसकी बुनियाद पर यासा का कहना है कि उसे ये कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। इस सब के नतीजे में यासा ने 26 जून को PIA को खत लिखा और शौकस तलब किया कि क्यों ना PIA का यूरोप आने जाने का इजाज़तनामा मुअत्तल कर दिया जाए, जिसके नतीजे में PIA को अपनी राय देने का एक और मौका दिया गया। उसका जवाब PIA ने 28 जून को एक जवाबी खत में दिया, जिसमें PIA ने अपनी राय और अज़ाफ़ी मालूमात फराहम की, मगर यासा ने इस सब को नाकाफ़ी करार दिया। इस खत में यासा के डायरेक्टर ने लिखा है कि उसे बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ मिली, जिनमें से बाज़ गैर मुंतकी भी है। उसकी एक मिसाल उन्होंने खत के अंदर दर्ज भी की है। लेकिन PIA के कराची तैयारा हादसे के बाद आने वाली इब्तदाई रिपोर्ट के जो नताइज सामने आए, उनसे यासा के मुताबिक ये बात सामने आई कि इस हादसे में हिफाजती इंतज़ामात के निज़ाम में दफा और बचाव के मुतअद्दिद इक़दामात की खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, जिसकी बुनियाद पर यासा का कहना है कि उसे तशवीश है कि सेफ्टी मैनेजमेंट का निज़ाम अपने बुनियादी मकसद का हासिल नहीं कर पा रहा है। उसके साथ साथ PIA को 24 रोज की तोसी दी गई, जो 24 मई से 17 जून तक थी। पायलट्स के लाइसेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए यासा का कहना है कि PIA ने उसे बताया तो है कि उसने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त में मौजूद पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है, मगर यासा की तशवीश इससे कम नहीं हुई, क्योंकि इससे इस बात के कवी इशारे मिल रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस गलत हैं। लिहाजा यासा को अब ये एतमाद नहीं कि पाकिस्तान बहैसियत PIA ऑपरेटर के काबिल है या नहीं, और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान मौसर तरीके से मुल्क में तस्दीक शुदा ऑपरेटर्स अमले पायलट्स की काबिलियत और ख़ासतौर पर शिकागो कन्वेंशन में वज़ा करदा मेयारात के मुताबिक दरकार काबिलियत की हर वक्त पाबंदी कर सकता है। 10 जुलाई 2006 को PIA का एक तैयारा मुल्तान के हवाई अड्डे से उड़ने के बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में PIA पर बारीक बीनी से छानबीन शुरू हुई, जो 5 मार्च 2007 को PIA के 42 में से सिर्फ 9 तैयारे छोड़कर बाकी सब पर यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने यूरोप आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। याद रहे कि इसी दौरान PIA के यूरोप में अहम तरीन रूट्स बंद किए गए, जिन पर अब खलीजी ममालिक की एयरलाइंस या टर्किश एयरलाइंस मुसाफिरों को लाती ले जाती है। इनमें एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट और दूसरे कई रूट्स शामिल हैं। यह पाबंदी 4 महीने रही, जिसे यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी के मुआयने के बाद जुज़वी तौर पर जुलाई में उठा लिया गया और 29 नवंबर 2007 में तमाम तैयारों पर से यह पाबंदी उठा ली गई। PIA में हालात आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ख़राब हैं, जिन्हें ठीक करने की संजीदा कोशिश 2016 से शुरू की गई, जब यासा ने पाकिस्तान को इजाज़तनामा दिया। उनमें बड़े पैमाने पर बेहतरी इस वक्त आई जब 6 निकात में से 5 पर यासा की तसल्ली हुई थी।
हवाबाजी से मुतल्लक मुख्तलिफ अफराद से बात करने पर यह इल्म होता है कि PIA के बारे में अदम तवज्जुही जिसका इजहार मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई दिनों में दीगर हुकूमती बहरानों की वजह से हुआ, उसकी वजह से ये हादसा होने को था। हुकूमत की जानिब से पूछगिछ खत्म होने और मुशर्रफ रसूल सियान के बरतरफ होने के बाद ये मामला पसे पुश्त डाल दिया गया। यहाँ तक कि इब्तदाई दिनों में उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर और वजीर आजम के साथ बड़ी शद्दोमत के साथ अजलास हुए। PIA की बहाली के लिए नए बिजनेस प्लान पेश किए गए, बड़े दावे किए गए और फिर पलटकर खबर ही नहीं ली गई। हाल ही में कराची तैयारा हादसा के बाद होने वाले इजलासों में PIA के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक ने वजीर आजम से इस मुतल्लिक शिकवा भी किया, जिस पर वजीर आजम ने अगले ही रोज अजलास रखने का फैसला सादर फरमाया, मगर वो अजलास भी 2-3 दिन के बाद मुमकिन हुआ। इस दौरान अरशद मलिक का केस भी अदालत पहुंचा, जिस दौरान अरशद मलिक कई हफ्ते गैर मौसर रहे और इंतजाम एडहाक बुनियादों पर चलाया जाता रहा। हद तो यह है कि एयर मार्शल आसिम सुलेमान को जबरी तौर पर रुखसत किए जाने के बाद मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता तकरीबन 2 बरसों से सिविल एविएशन का डायरेक्टर जनरल ही मुकर्रर नहीं किया, यानी 2 बरसों से सेक्रेटरी एविएशन एडहाक की बुनियादों पर सिविल एविएशन को चला रहे हैं, जबकि जिम्मेदारियां सिविल एविएशन बोर्ड के जुम्मा हैं, जिसकी सरबराही एयर मार्शल अहमद शहजाद के पास है, जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी हैं। इसके अलावा एयर वाइस मार्शल तनवीर भट्टी और एयर कमोडर नासिर रजा हमदानी उसके रुकन हैं। इनके अलावा चंद सिविलियन अराकीन भी हैं। याद रहे कि तारीखी तौर पर सिविल एविएशन एयर फोर्स के हाजिर या रिटायर्ड अफसरान ही चलाते रहे हैं। PIA इस फैसले के खिलाफ अगले 2 महीनों में फीस अदा करके अपील दायर कर सकता है, जिसके लिए कवानीन मौजूद हैं। यासा 6 महीने के दौरान PIA के इजाजतनामे को बहाल कर सकता है, जब वो PIA के इस्लाहात के मंसूबा से मुतमिन हो जाएगा, मगर ऐसा ना होने की सूरत में इस मुअत्तली में 3 माह की तोसी कर सकता है, जिसके बाद इस इजाजतनामे को मनसूख कर दिया जाएगा। PIA की अपील इस बार इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सवालिया निशान सिर्फ PIA पर नहीं, सिविल एविएशन की नाअहली और रियासत पाकिस्तान की काबिलियत, उसकी निगरानी और उसके तर्ज़े अमल पर लगाया गया है, जिसको दुरुस्त करने के लिए सिर्फ PIA के इक़दाम काफ़ी नहीं होंगे। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को सुधारने में संजीदा है और इस बारे में वजीर बराए हवाबाजी और वजीर आज़म कह चुके हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को एक बैनुल अक़वामी कमीशन का ऐलान करना चाहिए, जिसमें यासा, अमरीका की फेडरल एविएशन एजेंसी, आलमी सिविल एविएशन की तंजीम ICAO, आलमी एयर ट्रेवल तंजीम IATA और आलमी फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी हो, और जो पायलट्स के लाइसेंसी के निज़ाम का जायजा ले, इसमें मौजूद सिकम का जायजा लिया जाए, इसमें करप्शन का रास्ता खोलने वाले दर बंद करे और इस मामले पर अपनी रिपोर्ट के साथ एक जामिया शफाफ मंसूबा पेश करे। पायलट्स का कहना है कि इस तरह का एक कमीशन अपनी निगरानी में तमाम पायलट्स के इम्तिहानात और लाइसेंसी का दोबारा इनअकाद करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि वफाकी वजीर हवाबाजी के बयान के मुताबिक ना तो इस वक्त सिविल एविएशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाइसेंसी के मामलात पर काबिलियत रखते हैं, ना ही उनका निज़ाम ऐसा है जिस पर पायलट्स या आलमी तंजीमें एतमाद कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर एतराज़ करने वाले ये भी कहते हैं कि सिविल एविएशन के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद का पायलटिंग से क्या ताल्लुक है, क्योंकि पेशा वाराना तौर पर वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहे हैं। जब PIA के एक सीनियर एहलकार से पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने एक सत्र में जवाब लिखा, ईमानदारी से बताऊं, ये बका की जद्दोजहद है, वरना हमारी दुकान तो बंद हो चुकी है। ताहम एक एहलकार के ख्याल में PIA बंद नहीं होगी, मगर उन्हें सख्त इकदाम करके अपने घर की सफाई करनी होगी और रेगुलेटर की मुकम्मल तंजीमें नौ करने के साथ साथ दुनिया को ऐसा होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। उनके ख्याल में क्योंकि एविएशन डिवीजन और सिविल एविएशन किसी भी किस्म की इस्लाहात के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, वो इन 5 जिम्मेदार समझे जाने वाले अफराद को दफन करना चाहते हैं और यूँ उनके नज़दीक ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बैनुल अक़वामी एजेंसियों के लिए ये काफ़ी नहीं होगा और हकीकत यह है कि अगर वो सिविल एविएशन को बंद भी कर देते हैं तो भी किसी को परवाह नहीं होगी, क्योंकि कौम के जज्बात सिर्फ PIA के साथ जुड़े हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुख्तलिफ फ़ज़ाई कंपनियों में काम करने वाले 50 पाकिस्तानी पायलट्स, फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान
اور انجینئرز کے کوائف کی تصدیق کے لیے ایک فہرست پاکستان کے سول ایویشن اتھارٹی کو بھیج دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے جنرل سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل سید محمد سوادی نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کے نام اس خط میں اس تصدیق کے عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ پروازوں اور فضائی آپریشن کے تحفظ کے لیے جتنا جلد ہو مذکورہ معلومات فراہم کی جائیں۔ یاد رہے کہ ایمریٹس، اتحاد، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ فضائی کمپنیوں میں کئی پاکستانی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس خط میں قومی اسمبلی میں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کی تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی پائلٹس کے پاس جعلی لائسنس ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مذکورہ کپتانوں کے پاس متحدہ عرب امارات کے لائسنس ہیں جو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اجراء لائسنس کی بنیاد پر جاری کیے گئے تھے۔ ہمیں مشکوک اور جعلی کی وضاحت بھی درکار ہے تاکہ ہم پروازوں کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھا سکیں۔ متحدہ عرب امارات کے جنرل سول ایویشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عرب امارات کے متعدد ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرز اور فلائٹ آپریشن افسران جنہیں پاکستان سول ایویشن کی جانب سے لائسنس جاری ہوئے تھے، انہوں نے بھی انہیں مقامی طور پر تبدیل کر لیا ہے اور اب ان افسران کے کوائف کی تصدیق درکار ہے۔ یاد رہے کہ کراچی میں پی آئی اے کے طیارے کی حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ سے آگاہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر غلام سرور نے پاکستان میں جعلی لائسنس کا انکشاف کیا تھا اور بتایا تھا لائسنس یافتہ کمرشل پائلٹس کی تعداد 860 ہیں۔ انکوائری میں اس وقت 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہیں۔